हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर 12 जो है ज्योग्राफी का है, जिसमें आज हम करेंगे ह्यूमिडिटी एंड द प्रेसिपिटेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्द्रता और वर्षण भूगोल का चैप्टर 12। ये चैप्टर जो है कई मायने में हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे कहते हैं सीबीएसई के हो। अगर इनके सिलेबस में ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन है तो ये चैप्टर काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर condensations. There is the most important here, condensation. The condensation is the process by which the atmospheric water vapor change. Condensation is the process by which the atmospheric water vapor changes into water or ice crystal. There is important change into the water or ice crystal. It is just reserve of the process of evaporation, and when the temperature of saturated air fall below the dew point, the air cannot be hold the amount of humidity when it was the holding earlier at the higher temperature. This extra amount of humidity changes into the water droplet or crystal or bus depending upon the temperature at which the condensations take place. I repeat again, it is just a reverse of the process of evaporation. When the temperature of saturated air falls below the dew point, the air cannot be hold the amount of humidity which it was the holding earlier at the higher temperature. This extra amount of humidity changes into the water droplet or crystal of ice depending upon the temperature at which the condensation take place. There is a most important, and the next point here, process of condensation. There is a most important point here, process of condensation. The temperature of the air fall into the two way. Firstly, cooling occur around the very small particles of free floating air when it is come in the contact with some colder object. You know that the first point here, cooling to occur around a very small particle of freely floating air when it is come in the contact with some colder object. And the second point here, loss in air temperature take place on the massive scale due to rising of air to hold higher altitude. There is important here point. Second here, loss in air temperature take place on a massive scale due to rising of air to higher altitudes. The condensation take place around the smoke, salt and dust particle, which attract water vapor to the condense around them. They are called hygroscopic nuclei. There is important here. The condensation take place around their smoke, salt and dust particle which attract to the water vapor to the condense around them, and they are called to the hygroscopic nuclei. When the relative humidity of on air is high, when the relative
humidity of on air is high, a slight cooling is required to bring the temperature down below the dew point. That is important, below the dew point. But when the relative humidity is low and the temperature of the air is high, but when the relative humidity is low and the temperature of the air high, a lot of cooling of the air will be necessary to the varying the temperature down below the dew point, and thus condensation is directly related to the relative humidity and the rate of cooling. There is an important point here, but important here box a 2 point here the conclusion. The first here, condensation is a process of changing water vapor into the teeny droplet of water or ice crystal. There is important here. Condensation is a process of changing water vapor into the tiny droplet of water or ice crystal. And the second point here, condensation takes place when the temperature of air fall below the dew point and is controlled by the relative humidity of the air and rate of cooling. That is an important point. I repeat again. Condensation takes place when the temperature of air falls below the dew point and controlled by the relative humidity of the air and rate of cooling. And the next point here, the point B. The point B is the most important here from a condensation. You know that from the condensation here, condensation takes place in a two situation. Firstly, when the dew point is below the freezing point or below the 0 Celsius. You understand? The first here, when the dew point is below the freezing point or below the 0 Celsius, and secondly, when it is above freezing point, when it is above freezing point. In this way, the form of condensation may be classified into two groups. Here, from the condensation may be classified into two groups. First here, first snow and some cloud are formed when the dew point is below freezing point. The first and snow and some cloud are formed when the dew point is below the freezing point. And second here, dew, mist, fog, smoke and some cloud are formed when the dew point is above freezing point. There is a 2 point is the most important here. The form of condensation may be also be classified on the basis of place where it is occurring. For example, on the ground are nature objects such as grass, blades and leaves of the plant or trees. In the air close to the earth as a surface or at the some height in the troposphere is an important point here. And the next here, first point, dew. The dew is the most important here. When the atmospheric moisture is a condensate that is deposited in the form of water droplets on the cooler surface of solid objects such as grass, blades, leaves of plant and tree and the stone. It is a term as a dew. You understand? What is a dew? The condensation of dew from occur when there is a clear sky, little or no winds, high relative humidity and cold long night. This is important here. The condensation of dew from occur when there is a clear sky, little or no winds, high relative humidity and cold long night. And these conditions is lead to the great terrestrial radiation and solid object become cold enough to varying the temperature of air down below dew point. In this process, the extra moisture of the air get a deposit on this object. Dew is formed when the dew point is above freezing point. The dew formation can be seen if their water is poured into a glass from the bottle keep in a refrigerator. Repeat, dew formation can be
seen if the water is poured into the glass from a bottle keep in the refrigerator. The water cold surface of the glass bearing the temperature of the air in the contact with the surface down below the dew point and extra moisture get a deposit on the outer wall of the glass. You know that there is a most important experiment here. The outer cold surface of the glass bearing the temperature of air in a contact. The air contact with the surface down below the dew point of extra moisture get a deposit on the outer wall of the glass. And the next here, frost. When the dew point is below the freezing point under above mentioned condition, the condensation of extra moisture take place in the form of very minutes, yani every minute, and particle of ice crystal. It is called frost. I repeat again, frost when the dew point is below the freezing point. Dew point is below to the freezing point under above mentioned condition. The condition of the extra moisture take place in the form of the every minutes. The particle of ice crystal it is called frost. In this process, the air moisture condenses directly in form of the tiny crystal of ice. And this form of condensation is a distresses from a standing crop such as a potato, pea, pulses, gram, etc. It is also create a problem from a road transport system. It is also create a problems from a road transport system. And the next year, mist and fog. Mist and fog. When the condensations take place in the air near the earth as a surface in the form of teeny droplet of water hanging and floating in the air. It's called mist. What is a mist? When the condensations take place in the air near the earth as a surface in the form of tiny droplet of water hanging and floating in the air, it's called mist. In a mist, visibility in the more than 1 kilometer and less than 2 kilometer. The mist is a visibility of the more than 1 kilometer and less than 2 kilometer. But then the visibility is reduced to less than 1 kilometer. It's called fog. You know that? What is a fog? When the visibility is reduced to less than 1 kilometer, it's called fog. The ideal conditions from the formation of the mist and the fog are clear sky, calm and cold winter nights. The next year, smog. Smog is the fog that has been too polluted and discolored by smoke, dust, carbon dioxide, sulfur dioxide and other fumes. Smog frequently occur in the large cities and industry centers. It is a cause of respiratory illness. I repeat again, smog. Smog is a fog that has been polluted and discolored by the smoke, dust, carbon dioxide, sulfur dioxide and other fumes. Smog frequently occur in the large cities and industrial centers. It is a case of respiratory illness. And the next point here, fifth, a cloud. The cloud is important here. Cloud are a visible aggregate of water droplet. The cloud are visible aggregate of water droplet. Ice particles are mixture of both along with the varying amount of dust particle. A tropical cloud contains a million of droplets having to the diameter on the r per is a 0.060, 0.012, 0.02 mm. It's a very tiny particle here. Yet the liquid is a solid water amount account for the less than 10 part per million of the cloud volume. The important here, yet liquid are a solid water count for less than 10 parts per million of the cloud
volumes. The clouds are generally classified on the basis of their general form or appearance and attitude. Combining both these characteristics, cloud may be grouped as under the next year low cloud. The base level of low cloud varies from very near the ground to about 2000 meter. The basis type of this family is the stratus. A low and informal layer is resembling fog but not resting on the ground. The low cloud is most important here. The base level of low cloud varies from very near the ground to about 2000 meter. The basis type of this family is a stratus. A low, informally layered is resembling fog but not resting on the ground. Stratocumulus cloud from a low, grainy layer is composed of globular marks or rolls which are usually arranged in a group, line, and the waves. The cloud with a vertically development fall into the two principal, the categories columbus and cumulonimbus. The columbus cloud are the dense, dome shape and have a flat base, and they may be grow to become a columbus. They consist of vertically development depending upon the force of vertically currents below the clouds as well as upon to the amount of the latent heat of condensations elaborate into the cloud as they form. To absorb the directly when a cumulonimbus cloud may be covered to the whole sky and have to the appearance of nimbus structure. There is a wall nimbus is a reflex nimbo applied to a cloud from which rain is falling. Is derived from to the latent form violent rain. The next year, medium cloud. The medium cloud, this is cloud are formed at altitude between to the 2000 to the 6000 meters. And this group cloud is include alto columns as the alto stars. The next year, high cloud. And this cloud are formed above the altitude of 6000 meter and include cirrus, cirrostratus and cirrus is seen in their figure. Here show the picture. The cloud types are grouped into family according to the height and form. There is a most important diagram here. Here different types of cloud on form the earth. There is a important diagram for the exam view. यहाँ पर अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सदन। देखिए सदन क्या होता है। सदन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प जल या बर्फ के कणों में बदल जाती है। यानी सदन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प जल या बर्फ के कणों में बदल जाती है, और यह वाष्पीकरण को जो है ठीक विपरीत प्रक्रिया है। यानी वाष्पीकरण के ये ठीक विपरीत प्रक्रिया है, यानी ऑपोजिट प्रक्रिया ये। जब किसी संतृप्त वायु का तापमान उष्मांक से नीचे गिरता है तो वह वायु अपने अंदर उतनी आर्द्रता धारण नहीं करती है जितनी वह पहले धारण किए हुए थी। तो ये बात महत्वपूर्ण है। जब किसी संतृप्त वायु का तापमान उष्मांक से नीचे गिरता है तो वह वायु अपने अंदर उतनी आर्द्रता धारण नहीं करती है जितनी पहले धारण किए हुए थी। अंततः आर्द्रता की अतिरिक्त मात्रा तापमान जिस पर होता है के अनुसार जल की सूक्ष्म बूंदों या बर्फ कणों में बदल जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाती है। यदि क पॉइंट की बात करें तो यह साफ करता है कि सदन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो कैसे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सदन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। कहते हैं वायु का तापमान दो स्थिति में कम होता है। वायु का तापमान दो स्थिति में कम होता है। एक तो जब जल स्वतंत्र रूप से बहती वायु किसी अधिक ठंडी वस्तु के संपर्क में जाती है। यानी एक तो जब स्वतंत्र रूप से बहती हुई वायु किसी अधिक ठंडी वस्तु के संपर्क में जाती हो, तब ये आती है प्रक्रिया। दूसरी स्थिति होती है जब वायु ऊंचाई की ओर उठती है। यानी वायु जब है ऊंचाई की ओर उठेगी,
सघन धुआं, नमक तथा धूल कणों के चारों ओर होती हैं, क्योंकि ये कण जलवाष्प को अपने चारों ओर सदित होने के लिए आकर्षित भी करती है। और इन कणों के अंदरता गाही केंद्र कहलाते हैं। यानी अंदरता किसे क्या कहलाते हैं? गाही केंद्रक कहलाते हैं। जब किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो थोड़ी सी ठंड होने पर ही तापमान उष्मांक से नीचे आ जाती है। यानी देखा जाए कि जब किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो थोड़ी सी ठंड होने पर ही तापमान उष्मांक से नीचे आ जाती है। लेकिन जब किसी वायु की अपेक्ष आर्द्रता कम होती है तथा वायु के तापमान अधिक होती है तो उस वायु के तापमान को उष्मांक से नीचे अधिक ठंडा होने पर ही लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया सघन की गति एवं मात्रा वायु की अपेक्ष सांद्रता तथा उसके ठंडा होने की दर पर निर्भर सदैव करती है। कहते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट यही कहता है सघन जलवायु के छोटे छोटे जल कणों या हिम कणों में बदलने की एक प्रक्रिया है। यानी सघन जलवाष्प के छोटे छोटे कणों या हिम कणों में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। सघन जब तब होता है जब किसी वायु का तापमान उष्मांक से कम हो जाता है या नीचे गिर जाता है तथा यह वायु की सापेक्ष आर्द्रता और ठंडे होने की दर पर निर्भर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था यहाँ पर। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट जो है सघन के रूप में। आखिर सघन के रूप में कैसे? सघन दो परिस्थितियों में होता है। प्रथम, जब उष्मांक हिमांक बिंदु या 0 से कम होता है तथा दूसरा स्थिति में तब होता है जब हिमांक बिंदु से अधिक हो। यानी जब कम होता है या दूसरी स्थिति जब हिमांक बिंदु से अधिक हो। तो इस सघन को रूपों में 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग जो होगा हमारा उष्मांक के हिमांक बिंदु के नीचे तापमान होने पर, यानी उष्मांक के हिमांक बिंदु से नीचे होने पर क्या होता है? उस समय पाला होता है, हिम होता है और कुछ प्रकार के बादले बनते हैं। तो ये तब होता है जब हिमांक बिंदु से नीचे तापमान होते हैं, यानी कहते हैं हिमांक बिंदु से नीचे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी बात आती है जब ओस, धुंध, कोहरा, कुहासा तथा कुछ प्रकार के बादल उष्मांक के हिमांक बिंदु से ऊंचे तापमान पर बनने वाले रूप होते हैं। यानी ये ऊंचे तापमान में बनते हैं, जबकि ऊपर वाले जो होते हैं नीचे तापमान पे कौन कौन से बनते हैं? नीचे तापमान पे पाला, हिम और कुछ बादल बनते हैं। किस पे? नीचे तापमान पे। और जो ऊंचे तापमान पे बनते हैं वो क्या बनते हैं? ओस, धुंध, कोहरा, कुहासा और कुछ बादल भी बनते हैं इसके अंतर्गत। कहते हैं सघन को रूपों में स्थान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी स्थान के आधार पर वर्गीकृत करना जरूरी है। उदाहरण के लिए धरातल पर या प्राकृतिक पदार्थ जैसे घास का पेड़, पौधों की पत्तियां एवं पुतल के पास वायु में अथवा क्षोभ मंडल में कुछ ऊंचाई पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। यहाँ पर पहला पॉइंट आता है ओस। अब देखिए ओस का क्या प्रक्रिया होता है। जब वायुमंडलीय नमी संघनीय होकर जल बिंदुओं के रूप में ठोस पदार्थों को ठंडी धरातल जैसे घास, पेड़ पौधों की पत्तियां तथा पत्थरों पर जमा हो जाती है तो उसे ओस कहते हैं। यानी देखा जाए तो ओस क्या कहते हैं? जब वायुमंडलीय नमी संघनित होकर जल बिंदु के रूप में ठोस, यानी बिंदु के रूप में ठोस पदार्थों को जो ठोस धरातल पर जैसे घास पर, पेड़ पौधों पर, पत्तियों पर, पत्थरों पर जो जमा हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। और ओस के रूप में सघन तब होता है जब आकाश साफ हो, हवा न चल रही हो तथा ठंडी रातें, वायु की अपेक्षा आर्द्रता अधिक हो और इस दशा में पार्थिव विकिरणें अधिक तीव्रता से होती है तथा ठोस पदार्थ इतने ठंडे हो जाते हैं कि उनके संपर्क में आने वाली वायु का तापमान उष्मांक से नीचे गिर जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वायु की अतिरिक्त आर्द्रता इन पदार्थों पर जल बिंदुओं के रूप में जमा हो जाती है और ओस तब बनती है जब उष्मांक हिमांक से अधिक होती है। ओस बनने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है जब रेफ्रिजरेटर में रखी पानी की बोतल से एक गिलास में पानी डालने से गिला की ठंडी बाहरी सतह उसके पास की वायु के तापमान पे उष्मांक के नीचे गिरा देती है, जिससे वायु की अतिरिक्त नमी गिलास की सतह पर छोटी छोटी बूंदे के रूप में जमा हो जाती है। तो आप इस लैंग्वेज को नहीं समझ सके, सिंपली बात है
कि आप क्या कीजिए, गिलास लीजिए शीशे वाली यानी कांच का गिलास लीजिए और बर्फ़ के जो है गिलास में डाल दीजिए और उसको रूम टेम्परेचर पर रखिए। आप कुछ समय बाद क्या देखिएगा, जो गिलास के बॉल होते हैं उस पे आपको छोटे छोटे पानी के बूंद नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है ये ओसांग को रिप्रेजेंट करता है और ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको समझना के लिए ये प्रक्रिया आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है पाला। देखिए ऊपर बताई गई परिस्थिति में जब ओसांग हिमांक बिंदु के नीचे होता है तो अतिरिक्त नमी बर्फ के अति सूक्ष्म कणों में बदल जाती है। यानी जो है नमी बर्फ के अति सूक्ष्म कणों में बदल जाती है, इसे ही पाला कहते हैं। तो पाला समझ गए होंगे कि परिस्थिति ओसांग हिमांक बिंदु के नीचे होता है तो अतिरिक्त नमी बर्फ के अति सूक्ष्म कणों में बदल जाती है, इसे ही हम पाला कहते हैं। यानी पौधों को पाला मार देती है, ठंड से खराब हो जाता है। और इस प्रक्रिया में वायु की नमी प्रत्यक्ष रूप में बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। सदन का यह रूप खेतों में खड़ी फसलें जैसे आलू, मटर, अरहर, चना आदि के लिए हानिकारक होती है। तो मैंने बताया भी है कि ये फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है पाला, और पाला पड़ने से आलू हो, मटर हो, अरहर हो, चना हो, उसमें काफ़ी हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। और ये सड़क यातायात के लिए भी काफ़ी कठिनाई पैदा कर देता है। उसके पश्चात है धुंध और कोहरा। देखिए धुंध और कोहरा क्या है, जब सदन पृथ्वी तल के निकट की वायु में छोटे छोटे जल बिंदुओं के रूप में होता है और यह जल बिंदु वायु में तैरते रहते हैं तो इसे धुंध कहते हैं। और धुंध में दृढ़ता 1 किलोमीटर से अधिक होती हो और 2 किलोमीटर से कम होती है। लेकिन जब दृढ़ता 1 किलोमीटर से कम होती है तो इसे सदन के रूप को कोहरा कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि धुंध कैसे बनती है। जब पृथ्वी तल के निकट की वायु में छोटे छोटे जल बिंदु के रूप में होते हैं और ये जल बिंदु वायु में तैरते हैं तब धुंध बनती है। जब ये जल बिंदु जो है वायु में तैरते हैं, आपको पता होगा कि रेनबो कैसे बनती है, जब रेन होती है और कुछ बूंदें जो होती है आकाश में ही तैरने लगती है, जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो रेनबो बनती है। उसी प्रकार धुंध भी जब वायु में जब नमी में जो है जल बिंदु तैरने लगती है तो इसी कारण जो है धुंध का रूप धारण कर लेती है। लेकिन ये जो होती है 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम ही दृश्यता दिखाई देती है। लेकिन जब दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है तो इसे हम कोहरा का नाम दे देते हैं। अब देखिए धूम और कोहरा क्या होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। धूम कोहरा एक विशेष प्रकार की कोहरा है जो धुआं, धूल और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य धुआं द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है। यानी देखा जाए तो प्रदूषण के कारण ही धूम कोहरा का निर्माण होता है। और वो कौन कौन से होते हैं, धुआं हो, धूल हो, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो और अन्य धुआं आदि प्रदूषित कर दिया जाता है। और धूम कोहरा बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक केंद्रों में अक्सर पाए जाते हैं और इसका लोगों की आँखों और श्वसन प्रक्रिया में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे आँखें खराब होने की और श्वसन क्रिया खराब होती है। तो ये काफ़ी ही नुकसानदायक मनुष्य के लिए होती है। उसके पश्चात है बादल। देखिए बादल क्या प्रक्रिया यहाँ करती है, वायुमंडल में तैरते हुए हम जल बिंदुओं, बर्फ के कणों अथवा विभिन्न आकार के धूल कणों के साथ दोनों के मिश्रित झुंड को बादल कहते हैं। यानी धूल कणों के साथ बर्फ के कणों को जो मिश्रित झुंड होते हैं उसी को ही बादल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर जो बादल होती है उसमें जल बिंदु भी होते हैं, बर्फ के कण भी होते हैं और धूल कण भी होती हैं, तो इसी को ही बादल कहते हैं। एक बादल में जो है 0.60.01 से लेकर 0.02 मिमी से लाखों कण हो सकते हैं। 1 लाख कणों के बादल में इसकी मात्रा 10वें भाग के बराबर जल तथा बर्फ के कण हो सकते हैं। बादलों के सामान्यतः उनके रूप या आकृति तथा ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और इन दोनों विशेषताओं के मिलने से बादलों का जो है निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे यहाँ दर्शाया गया है। पहला पॉइंट है निम्न मेघ। ये बादल धरातल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक बनते हैं और स्थानीय मेघ इस परिवार का प्राथमिक मेघ है जो निम्न परंतु धरातल से ऊपर कोहरे के सामान्य परतों की आकृति वाला होता है। स्तरीय कपासी मेघ जो है निम्न भूरी परतों वाला गोलाकार होता है और ये जो है पंक्तियाँ, झुंड या
हड़कदार रूप से व्यवस्थित होता है। वे बादल जो अर्ध रूप से विकसित होते हैं इसके दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक कपासी और एक कपासी वर्षा मेघ। कपासी मेघ सघन गुंबदाकार एवं सपाट आधार वाले होते हैं और ये ही पड़कर कपासी वर्षा वाले मेघ बन जाते हैं। इसका मुखी विकास बादल के नीचे स्थित उच्च तरंग की शक्ति एवं बादल बनते समय छोड़ी गई गुप्त उष्मा की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। कपासी वर्षा मेघ से ठीक नीचे से देखने पर पूरा आकाश बादल से भरा दिखाई देता है तथा वर्ष तरीय निम्बोस्टेस यानी मेघ की तरह दिखाई देता है और निम्बोस शब्द का अर्थ उस मेघ से होता है जिसे तेज वर्षा होती है और यह लैटिन की भाषा से लिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। कहते हैं मध्य मेघ ये बादल जो है 2000 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई के मध्य बनते हैं और इस वर्ग में ऊंचाई कपासी मेघ यानी अल्टो कॉलम्स या उच्च स्तरीय मेघ यानी अल्टो स्ट्रेटस शामिल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखें हम उच्च मेघ के ऊपर तो उच्च मेघ इन बादलों के निर्माण में 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है और इसमें पक्षाभ यानी सर्कस, पश्चाप सत्री सर्कस स्ट्रेटस, पक्षाभी कपास यानी सिक्रोकलस मेघ शामिल होते हैं, जैसे कि चित्र में भी आप देख सकते हो भली भांति। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊंचाई कपासी वर्षा स्तरीय स्वच्छ मौसम कपासी बादलों का उद्धव उत्तरी स्तरीय कपासी मेघ सब कुछ दर्शाया गया है। तो कुछ इसी तरह से बादल का जो है निर्माण होती है, ये ऊंचाई तथा आकृति के अनुसार बादलों के यहाँ प्रकार दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम है जिसको आपको समझना चाहिए और ये जो टॉपिक था बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। इसमें हमने हर एक बात को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया, यहाँ तक कि डायग्राम को भी एनालाइज किए, उसके बारे में हमने जाना, बहुत कुछ हमने समझा। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में कमेंट करना भी नहीं भूलना। अगर इसमें कुछ गलतियाँ दिख रही है, कुछ आपको गलत लगा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और अच्छा लगा है तो भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इससे बनाने वाले का जो है मन प्रोत्साहित होता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे करने का सदैव मन में भावना बना रहता है। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलना, सजेशन देना है वो भी आप कर सकते हो। इससे जो है काफ़ी आपके लिए ही फ़ायदा होगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है त्रिपाण सेंटर एनालाइज करेगा और उसको अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करेगा जो आपके फ़ायदे में रहेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके फ़ायदे में रहेगा। आप सोचते होंगे कि मेरे क्लास जो है +2 ख़त्म हो जाने के बाद या क्लास ख़त्म हो जाने के बाद मुझे त्रिपाण सेंटर की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो आप गलतफहमी में हो। त्रिपाण सेंटर आपको पता ही है कि 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए वीडियो यह जो है त्रिपाण सेंटर पे उपलब्ध है और आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है बने हैं, साइंस के भी हैं। ठीक है, तो और 10वीं और 12वीं के तो हैं ही हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है आपको समय समय पर त्रिपाण सेंटर का जो है वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जो आपके फ़ायदे में रहेगा उसको आप सेव कीजिएगा, उसको देखिएगा, या जो आपके बच्चों के लिए या भाई बहन के लिए होगा आप उनको भी दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात दिखाना कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, और बात रहती है दूसरे बच्चों को शेयर करने की, तो आप जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा सकते हो। इससे त्रिपाण सेंटर को हेल्प मिल जाता है और दूसरे बच्चों को तक भी ये वीडियो पहुँच जाता है। जिनको देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेंगे, लेकिन आपने और मैंने अपना कार्य कर दिया। कहते हैं अपना कार्य करना ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहता है। ठीक है, हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय।